Good morning. Again, welcome to social science class. I do hope you might have been remembering that very few we have a class. ऐसा तो नहीं है ना कि भूल गए. The next time we will upload a video regarding it. How to learn a topic very well. Keep it for a longer time. But today in this class, we will discuss the another physiographic division of India. Among the physiographic division, we have discussed a few. For example, we have discussed regarding the northern mountain. We have discussed about the northern plain. The next most important physiographic division is that we are going to do. It is the plateau region. Just I am asking or saying it the plateau region. Somewhere it might have been written in the peninsular plateau. But I am asking, saying that only the plateau region. Now to understand it, this is roughly the rough diagram of South India, where we have to discuss about the physiographic division, that is the plateau region. If we discuss it, we have drawn the Gujarat region. Western Ghat, Eastern Ghat. In between it is the plateau region. I do hope you might have been remembering about the Tropic of Cancer. Now what we have to discuss it. We have drawn the Tropic of Cancer. This is the Western Ghat, not this part. It is the coastal plain. I am not talking about this part right now. I am talking about the middle part. In this part, we can divide the plateau region into two broad categories. One, that is the north of Tropic of Cancer. Another one, which is the south of Tropic of Cancer. Literally meaning, we can say it is called the Deccan Plateau. And the whole part, if we leave the plain region, northern plain, this is called Central Highland. ऊपर वाला हिस्सा सेंट्रल हाईलैंड, ये वाला हिस्सा डेक्कन प्लेटो. इसका फर्दर डिवीजन, चार डिवीजन हो गया. वन, इफ यू सी द एटलस यू विल गेट इट. Vindhya range and Satpura range. You will get over here Aravali range. Vindhya range, Satpura range, Aravali range. It is called your
मालवा प्लेट्यू। सबसे पहला हिस्सा ये मालवा प्लेट्यू हो जाएगा। अब ये पता चलता है कि हमको जो डेजर्ट है, डेजर्ट के साउथ वाला हिस्सा, ये कोना दिखाया जाता है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे, अरावली रेंज, विंध्या रेंज साउथ में। इसके बगल में जो हमको मिलेगा वो मिलेगा हमको बुंदेलखंड। उसके बगल में मिलेगा हमको बाघेल खंड। उसके बगल में मिलेगा हमको छोटा नागपुर प्लेट। It means upper parts have been classified into 4 categories. Which are 4? One, Malwa Plateau. Just east of Malwa Plateau, we have the Bundelkhand. Then we have the Bagelkhand. Then we have the Chota Nagpur Plateau. Now first we will discuss about the Malwa Plateau. As the figure shows, it is the extension of Deccan Tract made up of igneous and metamorphic rocks. This plateau has the slope towards north and northeast direction. Slope. It means it is highland over here and lowland on this direction. इधर highland, इधर lowland। इसको समझने के लिए कभी देखो, ट्रेन जब चलती है तो उसमें नंबर के साथ अप और डाउन लिखा रहता है। If you take a train, then the number is written up and down। ये up and down क्यों होता है? If from here we are going in this direction, it would be down, और इधर से इधर आएंगे तो उस पे नंबर पे अप लिखा रहेगा। अप मतलब कि इधर हाइट ज्यादा है, एवरेज सी लेवल से हाइट ज्यादा है, इधर एवरेज सी लेवल से हाइट कम है। दोनों में कंपैरेटिवली कौन कम कौन ज्यादा है? सी लेवल से कम नहीं है, इस दोनों में। इट मींस मालवा प्लेट्यू। एंड मालवा प्लेट्यू पता है, इफ यू हैव read about the soil, what type of soil is found? This soil, the soil that is found over here, it is the black soil. And the black soil is locally known as the Regur, and it is good for the cultivation of groundnut and sugarcane also, but best for the cultivation of groundnut, मूंगफली के लिए बहुत ही बेस्ट माना जाता है। And also best for the cotton. That's why it is also called the cotton black soil. We have got the reasons. अगर तुमको बताए, एक सिटी का नाम बता दें, इंदौर, कुछ याद आ रहा है? इंदौर, यस याद आ रहा है। चलो उससे ज्यादा याद आएगा कोटा। कोटा कहाँ है? तो कोटा इज इन राजस्थान। इंदौर कहाँ है? तो इंदौर इज इन मध्य प्रदेश। इसका मतलब जो मालवा प्लेट्यू है वो कहाँ लोकेटेड है? मालवा प्लेट्यू इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न मध्य प्रदेश एंड साउथ ईस्टर्न राजस्थान। वेस्टर्न मध्य प्रदेश and southeast Rajasthan it is located, that we have got it. We have got the slope. रिवर का नाम लेंगे तो एक रिवर का नाम होगा माही। माही स्टार्ट तो करती है मध्य प्रदेश में, ओरिजिनेट करेगा, इट गोज इनटू द अरेबियन सी। बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है, वो तो पता पक्का याद होगा, वो रिवर का नाम है चंबल। चंबल का बहुत फेमस होता है, चंबल का इलाका
अनडुलेटेड सरफेस, इसलिए कहता है चंबल में पहुंचना बहुत डिफिकल्ट। क्यों डिफिकल्ट? क्योंकि प्लेट्यू रीजन है। अब प्लेट्यू रीजन्स में लेस हैबिटेड है, रोडवेज नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं थी, तो इसलिए वहां पहुंचना दिक्कत होती थी, इसलिए चंबल बात फेमस हो गया। चंबल रिवर्स फ्लो इन द नॉर्थ डायरेक्शन। It means we have got the Malwa Plateau. It is between the Vindhya range and the Aravalli range. Type of soil that is found over here, it is the black soil. And which type of cultivation is done, which crops are more cultivated? It is good for the cultivation of cotton and groundnut. If we ask you the area, where it is area, it is the western Madhya Pradesh and south eastern Rajasthan. दो सिटी का नाम मैंने बताया, वन इज इंदौर, मंदसौर भी है, मध्य प्रदेश से पड़ता है, लेकिन एक याद रखने के लिए कोटा। If you are visiting the Kota anytime, so you will say we are in the Malwa Plateau. If you are visiting the Indore, big city है, industrial city है, so आप कहाँ हैं? आप मालवा प्लेट्यू में हैं, ये याद रहना चाहिए। कहाँ हैं हम लोग? मालवा प्लेट्यू में। उसके बगल में आते हैं तो इट इज फाउंड द बुंदेलखंड, ठीक बगल में बुंदेलखंड। अब इधर से इधर चलेगा तो सॉइल का कलर में भी थोड़ी सी चेंज आएगा, लिटिल बिट चेंज वी विल फाइंड इनटू इट। इट इज द बॉर्डर ऑफ यूपी एंड मध्य प्रदेश। थोड़ा सा पार्ट यूपी में, ज्यादा पार्ट इसका किसमें है? मध्य प्रदेश में। लिटिल पार्ट इन द यूपी, लेकिन ज्यादा पार्ट इसका क्या है? मध्य प्रदेश में। अब कैन यू रिमेंबर द नेम ऑफ द सिटी? झांसी। झांसी राइज इन दिस एरिया। If we find the important river, if we find in this area, it is Sindh and Betwa. Which river? Don't ask. It is Sindh, not the Sindh. Sindh is another river. And Betwa. Its direction is the same as the direction of the Malwa Plateau. उसका वही डायरेक्शन है। किधर है? डायरेक्शन मीन्स स्लोप। स्लोप किधर है? नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इसका भी स्लोप नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इसका भी स्लोप नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। कैसे पता चलेगा? कि इफ इन ए मैप इफ यू आर एबल टू फाइंड आउट द झांसी, इट मीन्स यू हैव गॉट द बुंदेलखंड। वो याद आता ना, बुंदेलो के हर बोलो की यही सुनी कहानी थी, तो ये बुंदेलखंड से आ रहा है। तो झांसी इज इन द बुंदेलखंड। हिंदी में कविता है झांसी की रानी। द रिवर, द नेम सिंध एंड बेतवा। स्लोप हो गया, कलर थोड़ा सा चेंज करा, लाइट हो जाएगा, डीप ग्रे से लाइट ग्रे की तरह कलर थोड़ा सा हो जाएगा। ये इससे और हम ईस्ट में चलेंगे, ईस्ट में जाएंगे तो हमको मिलेगा बाघेलखंड। बाघेलखंड का भी हिस्सा यूपी एज वेल एज एमपी में है। सोन रिवर का नाम याद होगा। सोन रिवर इसी बाघेलखंड से निकलती है, ओरिजिनेट इन द बाघेलखंड एंड फ्लो इन द नॉर्थ डायरेक्शन। इसका मतलब इसका फ्लो भी किधर है? नॉर्थ डायरेक्शन में है। इट इज फेमस फॉर द फॉरेस्ट। इट मीन्स बाघेलखंड में एक देखा जाए तो जो 50% एरिया है, इट इज कवर्ड बाय द फॉरेस्ट। व्हिच फॉरेस्ट? जनरली द सालवुड, बैम्बू एंड तेंदू लीव्स। साल सागवान बोलते हैं, बैम्बू बहुत जरूरी है। इसी के आसपास जो यूपी का इलाका पड़ेगा वो बरेली का पड़ेगा। एक बड़ा कहावत होगा, उल्टे बांस बरेली को, मतलब कि हम कहा भेज रहे हैं बांस? बरेली में, जहां सिर्फ बांस की खेती होती जाती।
तेंदुलिप्स बीड़ी बनाने के काम में आता है. It is harmful to use the bedi, but it used to be make the berry tendulips. Son river important. कलर थोड़ा सा चेंज हुआ, कलर होके ये रेड एंड येलो सॉइल. ये अलग अलग सॉइल नहीं है, इट इज द सेम सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल. इट्स कलर चेंजेस. जब गीला होगा तो कुछ और कलर और ड्राई होगा तो कुछ और कलर. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेड एंड येलो सॉइल. अब बागेलखंड इज, वी कैन से इट इज द डिपोजिट ऑफ कोल. यहां क्या मिलेगा आपको? कोल. मिनरल्स में कोल इज फाउंड इन अबंडेंस. अब यहां से हमको मिनरल्स मिलना शुरू हो गया. देन इफ फर्दर वी आर कमिंग टू द ईस्ट डायरेक्शन, वी आर फाइंडिंग इट इज द छोटा नागपुर प्लेट्यू. छोटा नागपुर प्लेट्यू का ज्यादातर हिस्सा, द मैक्सिमम एरिया इज इन द झारखंड. झारखंड से थोड़ा बाएं दाएं देखिएगा तो इट कंटेन्स द एरिया ऑफ थोड़ा सा वेस्ट बंगाल का भी लेगा. झारखंड से इधर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा का भी लेगा, और नीचे आ जाएंगे तो छत्तीसगढ़ का भी इलाका ले लेगा. तो ये जो इलाका होगा, कौन सा एरिया? झारखंड. इफ यू आर एबल टू रिमेंबर द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, where the Jharkhand is there, which state is just consulting it, तो उसके ईस्ट में जाएंगे, यू विल गेट द वेस्ट बंगाल. थोड़ा सा साउथ और ईस्ट में कोना में आपको मिलेगा क्या कहते हैं उसको, उड़ीसा. साउथ में जाएंगे आपको मिलेगा वेस्ट में छत्तीसगढ़ मिल जाएगा. तो ये सारा स्टेट है, जिसका मतलब थोड़ा सा पार्ट इधर भी हुआ है. नाउ कैन यू टेल मी व्हाई द झारखंड इज फेमस फॉर? मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर फाउंड. कोल डिपॉजिट, आयरन ओर डिपॉजिट. ये जो इलाका आपको मिलेगा, ये छत्तीसगढ़ का लेके जो इलाका मिलेगा, ये फेमस किसके लिए? इट इज फॉर आयरन ओर, इट इज फेमस फॉर कोल, इट इज फेमस फॉर माइका, इट इज फेमस फॉर बॉक्साइट. मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर फाउंड. छोटा नागपुर प्लेट्यू इट इज द मेड फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. सीधा नहीं बना, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से बना है. बाकी सब गोंडवाना लैंड का पार्ट था. ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट किससे कैसे बन गया? इन द बिगिनिंग व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन, हमें बताया था कि इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट वाज मूविंग टुवर्ड्स द मच बिगर यूरेशियन प्लेट. इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट किधर गया? यूरेशियन प्लेट की तरफ गया, कोलाइड किया. उस कोलिजन में माउंटेन तो बना, ये अपलैंड थोड़ा सा उठेगा. ये उठा हुआ पार्ट्स हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू के फॉर्म में हो गया. झारखंड के इंपोर्ट सिटी रांची तो है ही, बोकारो है ही, धनबाद है, ये है हजारीबाग है. ये all the cities are important for it. That we have got it. छोटा नागपुर प्लेट्यू इलाका समझ में आ गया. स्मॉल रिवर्स तो फ्लो करती है. साउथ में आएंगे तो साउथ में एक इरावती रिवर मिलेगी, एक आपको रिहंद रिवर भी मिलेगा. रिहंद रिवर का नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि रिहंद डैम पढ़ना भी है हम लोग को ज्योग्राफी में. तो ये हमने नॉर्दर्न पार्ट्स या पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट्स पढ़ लिए. क्या पढ़ा हमने? मालवा प्लेट्यू के विषय में पता चला हमको बुंदेलखंड के विषय में पता चला. वी हैव गॉट अबाउट द बागेलखंड, वी हैव गॉट अबाउट द छोटा नागपुर प्लेट्यू. नाउ कमिंग टू द साउथ ऑफ इक्वेटर, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वी आर फाइंडिंग. ये जो पार्ट्स वी हैव ड्रॉन इट इज नॉट कंप्लीटली द प्लेट्यू रीजन्स. ये प्लेट्यू रीजन्स कुछ ऐसे नहीं, मतलब कि इधर ज्यादा प्लेट्यू, इधर कम प्लेट्यू रीजन्स. इधर प्लेन एरिया भी ज्यादा है, मतलब कि सॉइल ज्यादा मिलेगा. इधर प्लेट्यू, इट मींस इट इज अ सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट. It is a part of the Gondwana land. Oldest part we can say it is the Deccan
प्लेट्यू। अगर नॉर्थ बाउंड्री देखा जाए तो सतपुड़ा रेंज एंड विंध्या रेंज साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये लगभग 8 स्टेट होकर पास करता है, 8 से 9 स्टेट होकर पास करेगा इस इलाके में। इट इज द स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स। Many minerals are found. There are also hilly regions. In these hilly regions, many spices are grown. तो ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू है। Its slope is from west to east. Complete slope, you will get it. Complete slope is west to east. In map, you can find out. गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी लीव द महानदी। महानदी उड़ीसा में आ जाएगा, मतलब कि महानदी एक तरफ से हो जाएगा कि छोटा नागपुर प्लेट्यू का सदर्न पार्ट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, और डेक्कन प्लेट्यू का नॉर्दर्न पार्ट हो जाएगा। गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, महाराष्ट्र से निकलता हुआ गोदावरी, उसके नीचे कर्नाटक वाला हिस्सा में कृष्णा एंड कावेरी जो तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु होगा, ये बहती इस इधर से फ्लो होकर इधर जाती है। जब रिवर इधर बे ऑफ बंगाल में जाएगा, देन इट माइट हैव बीन मेकिंग द डेल्टा। दैट्स व्हाई दिस इज द मोस्ट फर्टाइल रीजन। तो वी हैव गॉट द मालवा प्लेट्यू, वी हैव गॉट द बुंदेलखंड, वी हैव गॉट द बागेलखंड, वी हैव गॉट द छोटा नागपुर एंड वी हैव गॉट द डेक्कन प्लेट्यू। Now we were discussing about the Deccan Plateau. We have discussed the river of it. Which river? Godavari, Krishna and Kaveri. Which type of soil is found over here? Simply the soil that is found over here. Basically, ये जो हमने draw किया है, it is black soil. In higher class we will go it and it would make you easy कि थोड़ा सा रफली इसको आधा कर दें, इधर हमको ब्लैक सॉइल मिल जाएगा, इधर रेड एंड येलो सॉइल मिल जाएगा। ये जो ड्रफ किया है इससे यू कैन आइडेंटिफाई व्हिच सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन इट। इट इज बेसिकली डोमिनेटेड बाय द ब्लैक सॉइल बट इट आल्सो कंपोज रेड एंड येलो सॉइल। मतलब कि अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट यहाँ सिर्फ ब्लैक सॉइल नहीं है, इट इज कंपोजिशन ऑफ बोथ द सॉइल। कौन कौन सा सॉइल है? ब्लैक सॉइल एज वेल एज द रेड एंड येलो सॉइल। इसकी इधर आने पे ये बहुत ही फर्टाइल रीजन हो जाएगा। अब इस डेक्कन प्लेट्यू का कंफर्मेशंस वी कैन नॉट कंप्लीट इट विदाउट द कंप्लीशन ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट। इस दोनों का कंप्लीशन नेसेसरी है। ऊपर से चलेंगे मालवा, बुंदेलखंड, बागेलखंड एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये हमारा हो गया सेंट्रल हाईलैंड का। इसका स्लोप है छोटा नागपुर प्लेट्यू का साउथ एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। इसका डायरेक्शन हो जाएगा साउथ एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन। मतलब कि इधर से रिवर ओरिजिनेट करेगा, इट विल गो इनटू द बे ऑफ बंगाल। इसका डायरेक्शन किधर होगा? इस डायरेक्शन इज इन द वेस्ट डायरेक्शन। रिवर वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन मीन्स वेस्ट टू ईस्ट। ये वेस्ट टू किधर जाएगा? इट विल गो इनटू द ईस्ट डायरेक्शन। अब हम इसको ले लें, ये आपका वेस्टर्न घाट है, जैसे यहां देखता होगा ईस्टर्न घाट। Geologically, it has been said that the Eastern Ghat is older than the Western Ghat. It is a continuous range. ये लगभग जो महाराष्ट्र से स्टार्ट होता है केरल तक आती है। इट इज अराउंड 1600 किलोमीटर्स। लेंथ इसकी लगभग कितनी है? 1600 किलोमीटर्स। एंड इसका विड्थ लगभग कितना हो जाएगा? ये इसका लेंथ है एंड विड्थ इज 100 किलोमीटर्स। एवरेज विड्थ इज 100 किलोमीटर्स। Many hill stations and peaks are found into it. Western Ghat
The highest peak is, it is in Kerala, Modi, 2695 meters हाइस्ट पीक। कंटिन्यूस होने का इसमें रास्ता कम है, इट हैज द पासेस। पासेस आर द places to go across the mountain range। माउंटेन रेंज को क्रॉस करने के लिए जो रास्ता बना हुआ छूटा हुआ उसको पासेस कहते हैं। इसमें भी 3 इंपॉर्टेंट पासेस आपको दिखाना पड़ेगा। वो 3 इंपॉर्टेंट पास है। एक महाराष्ट्र में इट इज भोरघाट। महाराष्ट्र में जो पास है उसका नाम है भोरघाट। इट इज द भोरघाट। If you have been asked to show the Bhorghat in the map, you will show it into the Maharashtra. Then that is your थालघाट। केरला में यहाँ आइएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा। और जहां पे बॉर्डर किसके बॉर्डर पे? केरल तमिलनाडु के बॉर्डर पे we will get the Palghat. We have got the Bhorghat, we have got the Thalghat, we have got the Palghat. एक महाराष्ट्र में, दूसरा केरल में, तीसरा बाउंड्री पे है केरल और तमिलनाडु के बाउंड्री पे। Now coming to the Eastern Ghat. Eastern Ghat is discontinuous. It is not as continuous as the Western Ghat is there. जैसा वेस्टर्न घाट है कंटिन्यूस, बीच में बहुत टूटा फूटा है, ब्रोकन डाउन है। इसमें कहीं कहीं पे माउंटेन्स मिलता है। It is more close. Western Ghat is more close to the sea. It is more far away from the sea. अब जो रिवर आएगा तो रिवर पास होके चली जाती है, रास्ता है तभी तो रिवर जा रही है। यहाँ डेल्टिक रीजन, इट इज मोर डेल्टिक रीजन। वी विल डिस्कस इन द अनदर फिजियोग्राफिक डिवीजन। ये जो कोस्टल प्लेन है ये ज्यादा फर्टाइल रीजन है। As soon as I had told you that the highest peak of the Western Ghat is Anamudi, 2695 meters। उसी तरह अभी तक का जो रिसर्च है हम लोग को पता चल रहा था, वो अभी तक हम लोग जानते थे कि हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट इज महेंद्रगिरी। अब थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा। हाईएस्ट पीक इज महेंद्रगिरी, ये 1501 मीटर्स ऊंचा है। ये कहाँ मिलेगा? उड़ीसा में मिलेगा। लेकिन एक अभी न्यू रिसर्च बता रहा है इट इज लेस एक्सेसिबल ऑफ द ईस्टर्न घाट। another peak has been find out. The peak that has been find out, it is in the Andhra Pradesh and its height is 1690 meters। उसका हाइट 1690 meters है। Now new research discovered that the another peak, that is the Jindagada peak, it is in Andhra Pradesh. Its height is 1690 meters. According to it, it would be the highest peak of Eastern Ghat. Till we have the informations, we are reading it. The highest peak of Eastern Ghat is Mahendragiri. उसका हाइट कितना है? 1501 है। लेकिन एक पीक जो आ गया है ये आंध्र प्रदेश में है, महेंद्रगिरी उड़ीसा में है। हमारा सैटेलाइट स्टेशन भी है ना वो महेंद्रगिरी के पास, इसरो का बना हुआ है। जिंदागढ़ा पीक इट इज इन ऑफ 1690 मीटर्स। एक यहाँ पे जहां पर ज्वाइंट होता है, where the Eastern Ghat and Western Ghat meets, वहां पर एक जो हाईएस्ट पीक है वो है अनाई मलाई।
द हाईएस्ट पीक इज अनाईमलाई, यहाँ पे मिलेगा अनाईमलाई। यहीं पर एक माउंटेन रेंज है, इट इज कॉल्ड नीलगिरी। अगर नीलगिरी ढूंढना है, इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्लू माउंटेन, नीलगिरी और द ब्लू माउंटेन साउथ। इसका हिस्सा कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु तीनों में फैला हुआ है। कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु तीनों जगह फैला हुआ है। इसका जो हाईएस्ट पीक है वो है वन ऑफ द मोस्ट, इसमें से लगभग 24 पीक्स हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट पीक है वो है डोडा बेटा। डोडा बेटा इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पीक ऑफ द नीलगिरी हिल्स। दूसरी जगह नहीं दिखाना है, तो उसको कहाँ दिखाना है? वी हैव टू शो इट इन द नीलगिरी हिल्स। डोडा बेटा वी हैव टू शो इट इन द नीलगिरी हिल्स। We have got the Annarmudi, we have got the Anaimalai, we have got the Mahendragiri, we have got the Jindagada Peak, आंध्र प्रदेश। अब दो में कंफ्यूज नहीं होना है। अन्नायमुदी केरल में हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, Anaimalai it is at the junction of the eastern Ghat and the western Ghat, but it is not the highest. Its height is, but it is not highest. Mahendragiri has been till discovered that it is the highest peak of Eastern Ghat, but another peak has been discovered, Jindagada peak. It is in Andhra Pradesh. Its height is 1690 meters. It means till we have got it. The physiographic division, this is physiographic division, it is a peninsular plateau. Deccan plateau, then it is the Malwa plateau, Bundelkhand, Bagelkhand, Chota Nagpur plateau, then we have the Deccan plateau. Deccan plateau, you can say it is the sandwich between the western Ghat and the eastern Ghat. ये पूरा continuous नहीं है, हमने draw कर दिया है। It means roughly to make you understand what type of soil is found over here, we can classify it into two groups of soil. एक तरफ black soil है, एक तरफ red and yellow soil है। Western Ghat का highest peak, Eastern Ghat highest peak, then we have got the Bhor Ghat, we have got the Thal Ghat, we have got the Pal Ghat. If these things is to be asked to locate it, you can locate it. You see the atlas. I do hope this features is complete. In the next video, we will discuss the another feature.